Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Divedi and today we'll be studying about the back exercises, rather we'll be solving the back exercises of the chapter Ruling the Countryside. We have already completed the lecture. If you haven't watched, then do watch it and let's continue with the exercises without any further ado. So, okay, first very easy, match the following. It is easy because it is always having the answers, but हाँ अगर आप इसे ढंग से ना पढ़ो तो मैच द फॉलोइंग जैसे इजी चीज़ों में भी नंबर कट जाते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. पहला एक साइड हमारे ये कुछ टर्म्स दिए हैं एंड देन आई गेस दिस इज द मीनिंग. सो वी हैव रियोत, महल, निज एंड रियोती. What is a रियोत? हमने पढ़ा है कि रियोत हम किसे कहते हैं? पीजेंट्स को. And there was this entire system that was started, that was the रियोतवारी system, right? तो रियोत कौन होंगे? रियोत were the peasants. Okay, now let's come to महल. महलवारी सिस्टम भी था एक हमारा, एक रियोतवारी था, एक महलवारी था. तो महल इट मीन्स विलेज. ओके, now is the Nij cultivation. If you remember and if you don't, then do watch the lecture video. Nij was cultivation on planters own land. इसमें से कुछ परसेंट लैंड पे उन्हें इंडिगो कल्टिवेशन कंपल्सरी था. लोन्स जो थे वो कौन देती थी? ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे वो देते थे. नाउ लेट्स कम टू रियोती. रियोती इज ऑफ कोर्स द ओनली वन लेफ्ट, दैट इज कल्टिवेशन ऑन रियोट्स लैंड, ओके, ऑन द पीजेंट्स लैंड. So Ryot is peasant, Mahal village, Nij cultivation on planters own land, Ryoti cultivation on Ryot's land. Now let's move to the other question. Okay, it is a fill in the blanks. First question is growers of wood in Europe. Wood आपको पता होगा एक they came up with a similar or let's say a substitute dye to the indigo, right? क्योंकि उनको लगता था कि wood was comparatively cheap and easier to be used, but it was not that premium when it came to the quality. Indigo was considered the most premium and superior dye until the synthetic dyes were invented. Okay, the growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earnings. तो कौन था? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ना, saw indigo as a crop. Now, the demand for indigo increased in late 18th century Britain because of demand क्यों बढ़ गई थी इंडिगो की? Because of the expansion of cotton production. Okay. Okay, now let's come to the question third, that is the international demand. The international demand for indigo was affected by the discovery of. अभी मैंने आपको बताया ना कि indigo was considered the most superior and was in demand until the synthetic dyes were discovered. So this will be synthetic dyes. ओके, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट. अब हमें पता है जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ठीक है, गांधी जी ने क्योंकि वो जबरदस्ती जो चंपारण के कल्टीवेटर्स से थे उनसे इंडिगो का कल्टीवेशन करवा रहे थे, इसलिए गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह किया था. सो इट वॉज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. ओके, so first one is indigo. Then the demand for indigo increased in late 18th century Britain because of the expansion of cotton production.
International demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dyes and the Champaran movement was against the indigo planters. आपको planters is the keyword, plantations लिख के मत आ जाना, peasants लिख के मत आ जाना, indigo planters. Okay, now we have the in detailed questions. Okay. Describe the main features of the permanent settlement. ठीक है, मेन फीचर्स क्या थे परमानेंट सेटलमेंट के? तो मैं यहाँ पे पॉइंटर्स में लिख देती हूँ दैट, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द परमानेंट सेटलमेंट वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, और किसने इंट्रोड्यूस किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. अब यहाँ पे क्या थे? जो राजास थे या फिर जो तालुकादार थे, उन्हें एज जमींदार कंसिडर किया जाता था और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते जो पीजेंट्स थे वहां के उनसे, ठीक है. तो जो राजास थे या फिर तालुकादार थे वो पीजेंट्स से पैसे कलेक्ट करते, रेवेन्यू कलेक्ट करते और फिर उस रेवेन्यू को कंपनी को देते, ठीक है. ये तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं कि मेन फीचर्स क्या थे हमारे जो ये परमानेंट सेटलमेंट है उसके. तो मेन फीचर्स क्या थे हमारे परमानेंट सेटलमेंट के? सबसे पहला हो जाएगा हमारा कि जो राजास थे वही जमींदार थे. राइट, राजाज वर दी जमींदार्स. सेकेंड फीचर क्या हो जाएगा हमारा कि जो जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो एक राइट था उस जमीन के टुकड़े के ऊपर वो खो दिया था और अगर कभी भी अगर वो पेमेंट करने से कंपनी को रुक जाते या चूक जाते, सो इन केस द जमींदार was unable to pay the company, he would end up losing
would end up losing his right over the land. Okay, now let's see. ये तो हमने दो फीचर्स पढ़ लिए. जो अमाउंट था, ठीक है, जो कि जमींदार को कंपनी को पे करना था, वो भी फिक्स्ड था परमानेंटली. ठीक है, the amount to be paid by zamindars were fixed permanently. ओके, तो जो अमाउंट था वो भी फिक्स्ड था परमानेंटली, जो कि जमींदार को देना था. तो ये हो गए हमारे. एक बार वापस से देख लेते हैं. द परमानेंट सेटलमेंट वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 by the East India Company. The Rajas or the Talukadars would collect revenue from the peasants and pay it to the company. अब main features of the permanent settlement was Rajas were the zamindars. In case the zamindar was unable to pay company, he would end up losing his right over the land, and the amount to be paid by zamindars was fixed permanently. इसीलिए इसे हम permanent settlement भी बोलते हैं. Okay, I hope ये आंसर अब क्लियर होगा. Let's move to the another one that says how was the Mahalwari system different from the permanent settlement. अब permanent settlement और Mahalwari system के बीच का we'll be studying the differentiation. So whenever we have to write a difference, it is always good if we make a table. Let us see. I don't think we have a table. At least we have a line, which didn't work apparently. Yeah. Okay. I guess it is good enough. Mahalwari system and the permanent settlement. Okay, permanent settlement को कौन लाए थे? Lord Cornwallis, who is also the father of Indian civil services. Introduced by Lord Cornwallis in 1793. Okay, so this is the first point. Now, Mahalwari system was by Holt. Mackenzie devised it and it came into effect in 1822, a lot later in comparison to the permanent settlement. Also, if you would study, Mackenzie have a great impact on the Indian education system as well that we have now. So, you must see it in year 1822. ओके, अब देखिए, ये एपिसेंटर होता था, ठीक है, सिस्टम का, एक विलेज के सिस्टम का. सो द एपिसेंटर ऑफ द सिस्टम वाज अ विलेज.
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज सच हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था ना, कोई एज सच एपी सेंटर नहीं होता था इसका, सो नो एपी सेंटर एज सच। ओके, नाउ यहाँ पे हमने, आपको याद है यहाँ क्या पढ़ा था, महल village, so the village was called mahal, but in permanent settlement ऐसा कुछ भी नहीं था, so we can write it and इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो रेवेन्यू था सबसे, अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एक रेवेन्यू सिस्टम ही है, तो परमानेंट सेटलमेंट में हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली, राइट। जो रेवेन्यू था इट वाज फिक्स्ड परमानेंटली, बट महलवारी सिस्टम में इट वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, ठीक है। तो द रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड दैट ईच जमींदार हैज टू पे टू द कंपनी, जो राजा या फिर तालुकादार थे जिन्हें जमींदार बनाए थे। और यहाँ पे क्या था, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच महल और द विलेज हैड टू पे। अब यहाँ पे हु वर द रेवेन्यू कलेक्टर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स were the राजाज और दी तालुकादार्स, ठीक है। वेट, आई गेस आई रोट इट रॉन्ग, is it possible? Wait, तो जो हमारे रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो कौन थे, दे वर दी राजाज और दी तालुकादार्स। नाउ ये परमानेंट सेटलमेंट में था, बट हमारे महलवारी सेटलमेंट में क्या था, जो विलेज हेडमैन थे जिन्हें अब हम नॉर्मल में क्या बोलते हैं, सरपंच, हेडमैन वाज द रेवेन्यू कलेक्टर। Okay, so now we have almost studied the 5 important points. It was by Holt Mackenzie, year 1822. It was by Lord Cornwallis, year 1793. It was the epicenter of the system was a village. No as such epicenter, village was called Mahal. No as such thing, revenue was revised periodically, revenue was fixed permanently. Headman was the revenue collector, revenue collectors were the Rajas or the Talukadars. Okay, so I guess with this we have completed question 4th. Now let's come to question 5. Give 2 problems which arose with the new Monroe system of fixing revenue. ठीक है, एक Monroe system आया था, तो उसमें क्या क्या 2 मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे,
the problems that arose under the new Monroe system of fixing revenue were ओके जो नई प्रॉब्लम्स आई थी मुनरो सिस्टम के अंडर रेवेन्यू फिक्स करने की, वो क्या क्या थी? एक तो था दैट द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड वे टू हाई फॉर द पीजेंट्स टू पे। इन्होंने क्या किया था ना, अगर आप जाके चैप्टर पे ध्यान देंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो इन्होंने ये बोला था कि हम आपसे कभी रेवेन्यू बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स्ड रेवेन्यू है। पर रेवेन्यू ही इतना ज्यादा इन्होंने फिक्स किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज के लिए 10 रुपए पे करने हैं, पर बोल दिया जाए कि आने वाले 10 सालों तक ये 10 रुपए की चीज ही रहेगी, बट उसकी जो असली वैल्यू है वो 50 पैसे है। सो इट इज अ लॉट, द फिक्स्ड प्राइस इज ऑलरेडी अ लॉट टू बी पेड। तो यही चीज हो रही थी। तो जो फिक्स्ड प्राइस था, ठीक है, वॉज वे टू हाई फॉर द पीजेंट्स टू पे। अब हमसे यहाँ पे दो रीजंस पूछे हैं, ये पहला रीजन हमने लिस्ट कर दिया। दूसरा रीजन हमारा क्या होगा कि पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द रेंट व्हिच कल्मिनेटेड इन विलेजेस गेटिंग डेजर्टेड। तो जब वो अपना रेंट ही नहीं दे पा रहे थे तो वो छोड़ते चले जा रहे थे विलेजेस को, उसकी वजह से जो विलेजेस थे वो एकदम ऐसे वीरान डेजर्टेड हो गई थी, क्योंकि वहां कोई लोग ही नहीं रह रहे थे। तो सिंस द पीजेंट्स were unable to pay the rent, the villages started being deserted. Okay, now let's move to the other question, that is, why were riots reluctant to grow indigo? Why were the riots reluctant कि भाई हम इंडिगो की ग्रोथ को लेके? तो रीजन क्या था इसका? तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, द riots were reluctant to grow the indigo for following reasons. सबसे पहला, जो उन्हें प्राइस पे किया जाता था, ठीक है, वो बहुत ही कम होता था। they were paid a very low price for it. The prices they were paid was very low. उसके बाद क्या होगा रीजन? द riots never saw any profit. उनको ये बोलते थे कि हम आपको मतलब आपको प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, बट दे नेवर सॉ कि हाँ उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है। सो द riots did not notice any substantial
profit occurring from the फ्रॉम द इंडिगो कल्टिवेशन। ओके, तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है या कुछ इस टाइप का इंडिगो कल्टिवेशन से। ठीक है, उसके बाद रियोट्स को क्या बोला गया था कि भाई तुम जो अपना फर्टाइल लैंड है उस पे इंडिगो होगा, जिसके वो अगेंस्ट थे, क्योंकि वो जो फर्टाइल लैंड था उस पे वो राइस ग्रो करते थे। ठीक है, सो they were asked to grow indigo on the fertile land to which they opposed because they cultivated rice on that land। और मोस्टली अगर आप चैप्टर जाके हम लेक्चर वीडियो सुनेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से राइस वर्सेस इंडिगो होता था, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिगो के लिए लेबरर्स चाहिए होते थे उसी टाइम पे राइस के लिए चाहिए होते थे, एंड देन दे वुड शिफ्ट टू राइस बिकॉज ऑब्वियसली राइस वाज समथिंग दैट दे वुड ईट, दे वुड सेल, बट इंडिगो से ना उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा था ना उनके मतलब खाते थोड़ी इंडिगो, इसीलिए। तो 3 रीजंस क्या हो गए, जो उन्हें प्राइजेस पे करे जा रहे थे वो बहुत कम थे, रियोट्स ने किसी भी तरह का सब्सटैंशियल प्रॉफिट नहीं नोटिस किया इंडिगो कल्टिवेशन में, और उन्हें इंडिगो को उन फर्टाइल लैंड्स पे ग्रो करने को बोला जिसके वो अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि वो उन फर्टाइल लैंड्स पे राइस ग्रो किया करते थे। ओके, नाउ व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। अच्छा, ये आप चैप्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा काफी ज्यादा मारा पीटी भी हो गई थी लास्ट में, कि जो विलेजर्स थे उन्होंने प्लांटर्स को पकड़ के पीट दिया था, फिर एक बकायदा इंडिगो कमिटी बैठी थी। ठीक है, all these things you would see in the lecture, so do watch the lecture video, this is a very important chapter। ठीक है, so the collapse of indigo production in Bengal was due to the following reasons। पहला क्या था कि रियोट्स ने बोल दिया अब हम किसी भी तरह का इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे। Riyots denied to grow इंडिगो। ठीक है, और फिर अगर उन्हें फोर्स क्या था, प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, रियोट्स को, और वो सपोर्ट करने लगे, और उनको सपोर्ट कौन करने लगे, जमींदार्स, क्योंकि जमींदार्स को भी कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला के। ठीक है, तो प्रोटेस्ट started against the indigo cultivation and the zamindars supported the peasants। और जब इंडिगो कमिटी बैठी थी उसके बाद उसने ये भी बोला था कि किसी भी पीजेंट को कोई भी प्लांटर जो है वो फोर्स नहीं कर सकता टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि अभी तक जो भी पीजेंट्स ग्रो कर रहे थे उसमें से मेजॉरिटी वर फोर्स्ड। ओके, फॉलोइंग द प्रोटेस्ट द इंडिगो कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट, जो वही जो मैं आपको बता रही थी, और उसने बोल दिया था कि नो प्लांटर्स कैन बी नो प्लांटर कैन फोर्स द पीजेंट्स, और अगर किसी को फॉल्टी पाया गया सो ही विल बी पनिश्ड। इंडिगो कमीशन वॉज established
which firmly declared that any faulty planter must be punished and okay, any faulty planter must be punished and no peasants can be forced to grow indigo. उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली the planters left the city. Okay, now eventually the planters left the city क्योंकि अब उनके लिए कुछ सिटी में बचा तो था नहीं. So the riots denied to grow indigo, protests started against the indigo cultivation and zamindars supported the peasants. Indigo commission was established which formally declared that any faulty planter must be punished and no peasants can be forced to grow indigo. Eventually the planters left the city, and with this we complete the back exercises of ruling the countryside. Thank you for watching the video and stay connected to our channel.